السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ آواز میری آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک پہنچ رہی ہوگی. جی شیخ الحمدللہ پہنچ رہی ہے. اور دوسری امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بخیر عافیت ہوں گی انشاءاللہ. تو قاعدہ چل رہا تھا مبتدا اور خبر سے متعلق، ہم قواعد پڑھ رہے تھے. مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. میں یہاں پہ لکھوں ایک مرتبہ. ہم پڑھ رہے تھے المبتدا والخبر. اس کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں. سب ہم نے پڑھ لیا مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، پڑھ لیا نا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. مبتدا کو رفع ملتا ہے، اس کے اعراب کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے مبتدا کے اقسام. مبتدا کے اقسام ہم پڑھ رہے تھے، یعنی اس کو ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں، مبتدا ہو جائے گا مبتدا. ٹھیک. ہم نے بتایا کہ مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے نا. اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. جیسے البیت قدیم جدا مثلا. تو البیت مبتدا ہوا کیونکہ یہ اسم ہے، اسم ضروری ہے. مبتدا اسم ہوتا ہے، مبتدا اسم ہوتا ہے. تو اس اسم کو کہتے ہیں جس سے جملہ شروع ہوتا ہے. یہاں پر میں نے کہا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے، اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، جیسے البیت قدیم جدا، گھر بہت پرانا ہے، تو یہاں پر اسم ظاہر ہو گیا ہے، یہاں پر اسم ظاہر ہو گیا ہے. ضمیر کیسے، جیسے آپ کو نہیں بولنا ہے بیت نہیں بولنا ہے تو آپ بولیں گے ہوا قدیم جدا. تو یہاں پر اسم ضمیر ہے، یہ ظاہر ہے اور یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. تو چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ ضمیر ہو، ہم اس کو کہتے ہیں اسم صریح. اسم صریح کہتے ہیں اس کو، چاہے ظاہر ہو چاہے وہ ضمیر ہو، وہ اسم صریح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری چیز ہم نے بتائی تھی کہ مبتدا اسم ظاہر یا ضمیر ہو سکتا ہے، یا پھر مبتدا مصدر مؤول ہو سکتا ہے. مصدر مؤول کسے کہتے ہیں، یہ پچھلے ہفتے پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. مصدر مؤول کسے کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل مضارع جس سے پہلے ان لگتا ہو. ایسا فعل مضارع جس سے پہلے ان ہو. ٹھیک ہے. اس کو مصدر مؤول کہا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ میں نے عموماً متکلم کی مثالیں دی. آج آئیے میں غائب کی مثالیں دے دیتا ہوں. هو يريد ان يصلي، هو يريد ان يصلي، یہ جملہ مصدر مؤول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. هو يريد ان يصلي، یہ جملہ مصدر مؤول کہلاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں هو يريد الصلاة، یہ ہے مصدر. اس کو مصدر مؤول، کیونکہ یہ مصدر کا معنی دیتا ہے. جب ان فعل مضارع پر آ جاتا ہے تو دیکھیں گے آپ مصدر کا معنی دیتا ہے. اسی لیے اس ان کو کیا کہتے ہیں، ان مصدریہ کہتے ہیں. تو هو يريد ان يصلي، یہ جملہ پورا مصدر مؤول کہلاتا ہے، کیونکہ مصدر کا معنی، یہ اصل میں مصدر نہیں ہے جملہ، لیکن مصدر کا معنی ہے. اس میں یہ جملہ مصدر نہیں ہے بلکہ مصدر کا معنی ان کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو مصدر مؤول کہتے ہیں.
तो बात अब यहां तक हुई थी हमारी कि मुब्तदा मस्दर मुअव्वल भी होगा। कैसे? उसकी मिसाल बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे किताब में आपकी मिसाल है वअन तसूमू, वअन तसूमू खैरुल लकुम, वअन तसूमू खैरुल लकुम, वअन तसूमू खैरुल लकुम। ये खूबसूरत राइटिंग समझना मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए आजकल आसान हो गया होगा। जी, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरी ये खूबसूरत सी राइटिंग को समझना। तो अन तसूमू खैरुल लकुम ये मस्दर मुअव्वल है नहीं है? नहीं है। नहीं है। अन तसूमू मस्दर मुअव्वल नहीं है, ठीक है? नहीं है ना? मस्दर मुअव्वल है उस्ताद जी, है शेख मस्दर मुअव्वल है। नहीं बनेगा क्योंकि ना। आपने बताया कि जी मस्दर मुअव्वल है। चले ठीक है। तो आमिना ने कहा कि मस्दर मुअव्वल नहीं है और सब ने कहा मस्दर मुअव्वल है। तो अन तसूमू ये मस्दर मुअव्वल है क्योंकि तसूमू फ़िल मुदारे से पहले अन दाखिल हुआ है, अन मस्दरिया। तो अब इस जुमले को अब असल बात की तरफ आ रहा हूं मैं, तवज्जो दें। मुब्तदा मस्दर मुअव्वल भी होता है, ठीक है? तो अब यहां पर ये जुमला मस्दर मुअव्वल है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? मुब्तदा कहेंगे, इसको मुब्तदा कहेंगे। ये पूरा जुमला उसकी खबर है, ठीक है? अब अलग अलग करना है तो फिर यही करना पड़ेगा, वाव को छोड़ दीजिए आप। अब बोलना पड़ेगा कि अन ये अन मस्दरिया है, नासिबा है, तसूमु फ़िअलुन मुदारिउन मंसूबुन बिअनिल मस्दरियति व अलामतु नस्बिही हज़्फ़ुन नून, ये सब बोलना पड़ेगा फिर। लेकिन अल जुमला कामिला, ये पूरा जुमला जिसको मस्दर मुअव्वल कहा जाता है, इसको आखिर में हम बोलेंगे कि ये मुब्तदा है। बात वाज़ेह है? जी हाँ। इसी तरह एक और मिसाल है वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा। देखिए वअन तअफ़ू, ये तअफ़ू है, अक़रबु लित्तक़वा मिसाल। तो यहां पर अन तअफ़ू माफ कर देना, तुम्हारा माफ कर देना, वही है ना मिसाल जी। वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, तुम्हारा माफ कर देना ये तक़वा के ज्यादा करीब है। नाराजगियां हजार हों लेकिन माफ कर दें ये तक़वा के ज्यादा करीब है। वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा। तो अब इस जुमले को हम क्या बोलेंगे? मुब्तदा। इसको हम बोलेंगे मुब्तदा, ठीक है? और इसको क्या बोलेंगे? ये पूरे जुमले को क्या बोलेंगे? खबर। खबर बोलेंगे जी। बस यही बात है। इससे ये सारी बातों का खुलासा कि मुब्तदा इस्म सरीह भी होता है और मुब्तदा जी मस्दर मुअव्वल भी हो सकता है, मस्दर मुअव्वल भी हो सकता है। मिसालें दोनों की आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, ठीक है? चलें हम आगे बढ़ सकते हैं ना? अच्छा, यहाँ पर मस्दर मुअव्वल दरमियान में आ गया है। देखें उरीदु, ठीक है? उरीदु अन अज़हब, ठीक है जी। थोड़ी सी ज़ाल है भी सॉरी, उरीदु अन अज़हब, ठीक है? यहाँ पर देखें अन अज़हब शुरू में नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको बोलेंगे फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन बिद्दम्मति ज़ाहिरा, ठीक? वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु अना, ठीक है? जी। उसके बाद अन बोलेंगे अन हर्फुन नासिबुन और अन मस्दरिया नासिबा, फ़िअलुन अज़हब फ़िअलुन मुदारिउन मंसूबुन बिअन व अलामतु नस्बिही अल फ़तहतु ज़ाहिरा, ठीक है? इसी तरह यहाँ भी वही है कि अन अज़हब वल फ़ाइलु, चूंकि फ़ेल आ गया तो फ़ाइल होना जरूरी है। वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु अना। अना। अब ये पूरा जुमला हो गया मफ़ऊलुन बिह, क्योंकि फ़ेल भी आ गया फ़ाइल भी आ गया। अब क्या चाहिए हमें? मफ़ऊलुन बिह, ये जुमला। क्योंकि मेरा चाहना क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं, यानी ये असल में है
उरीदु अज़्ज़हाब, ठीक है, जी उरीदु ज़हाब। अब यहाँ देखिए ये मफ़ऊल है, लेकिन जो मिसाल मैंने आप लोगों को दी है जो आप ही की किताब से है, वो उसमें मस्दर मुअव्वल शुरू में है, यानी अन तसूमू खैरुन लकुम, यानी ये अन तसूमू असल में है, अन तसूमू असल में है सियामुकुम या सौमुकुम, सियामुकुम खैरुन लकुम, अन तसूमू खैरुन लकुम यानी सियामुकुम खैरुन लकुम। जी, मस्दर मुअव्वल मस्दर सरीह के मुकाबले में है। जी बिल्कुल ठीक। मस्दर मुअव्वल किसके मुकाबले में है? सरीह के, इसमें सरीह के, सरीह के, इसमें सरीह नहीं, ओहो, सरीह के, मस्दर सरीह के, मस्दर सरीह, मस्दर सरीह के माने वादिह के है ना जी, है ना? तो एक सरीह है और एक मुअव्वल है, ठीक, एक वादिह है और एक बनाया गया है, जी, ठीक है। तो जैसे किसी भी इस्म का मस्दर, जैसे सामा यसूम का मस्दर क्या है, खरजा यखरुजु का मस्दर क्या है? शेख साहब सामा यसूमु का सियाम है ना? सियाम 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 सियाम। इखराज, खरजा यखरुजु का क्या है? खरूज खुरूज, खुरूज। दखल यदखुलु का क्या है? दखूल दखूल दुखूल। तो माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक अख गुलाम मुस्तफा साहब। तो ये ऐसे जो मसादिर हैं ना, इनको कहते हैं ये मसादिर सरीहा हैं, बिल्कुल वादिह ये मस्दर है, ठीक, इसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं है, ये बिल्कुल वादिह मस्दर है, इसको बोलेंगे मस्दर सरीह। मैं देखिए लिख भी सकता हूँ ना, इसको बोलेंगे मस्दर सरीह, ठीक है जी, यह है मस्दर सरीह। इसके मुकाबले में है मस्दर मुअव्वल, जी, बनाया गया है, तावील की गई है उसके, मस्दर मुअव्वल है वो, ठीक है, जी, अव्वला से मस्दर मुअव्वल, यानी जैसे अन तज़हब, अन तज़हब कि तुम जाओ, है ना, यानी तुम्हारा जाना, कि तुम जाओ मतलब तुम्हारा जाना, है ना। देखिए इसको हम ये कहीं पर हम मस्दर सरीह भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं मस्दर मुअव्वल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सवाल कर रहा हूँ, मता तुसाफिरीन, अच्छा चलिए मैं उर्दू में पूछता हूँ पहले, मैं उर्दू में पूछता हूँ आपसे पहले, आप कब सफर कर रही हैं या करेंगी? एक ही अंदाज, सवाल का एक ही अंदाज। दूसरा मैं अंदाज यही सेम मैं सवाल कर रहा हूँ दूसरे अंदाज से, ठीक है, गौर करें। मैंने पहले क्या पूछा? मता तो साफिर, आप कब जी सफर करेंगे? आप कब सफर करेंगी? अब मैं पूछ रहा हूँ मता सफरुकी, बात तो एक ही है ना? जी, बात एक ही है, जी जी, हाँ, मता सफरुकी, है ना। तो कहीं पर हम लोग मस्दर सरीह इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं पर हम लोग वैसे मता तुसाफिरीन में हमने फेल इस्तेमाल किया है कि आप कब सफर करेंगी, तो उर्दू में भी ऐसे ही है कि आप कब खाएंगी, आपका खाना कब होगा, आप कब सोएंगी, आपका सोना कब होगा, आप कब जाएंगी, आपका जाना कब होगा, ठीक। तो ये सोना, खाना, पीना, जाना, जागना, उठना, ये सारे के सारे मसादिर सरीहा हैं, ठीक है, ये सब के सब मसादिर सरीहा कहलाते हैं। अब देखें मस्दर मुअव्वल कैसे बनता है, तो उसके लिए हमने बताया कि फेरे मुदारे से पहले अन लग जाए, किसी भी फेरे मुदारे से पहले अन आए तो हम कहेंगे ये मस्दर मुअव्वल है। बिल्कुल जी, क्योंकि वो अन का नाम ही है, इस अन का नाम है अन मस्दरिया, इस अन का नाम ही क्या है? ऐसे तो ये अन जी अख नसीम क्या कह रहे हैं? ऐसे ये तो नवासिब है, हाँ, उसका अमल है कि वो नसब देता है, वो ये तो नवासिब भी है ना, हाँ जी, नवासिब, जी नासिब है, नासिब उसका नाम नहीं है,
या फिर ये कहेंगे उसका अमली नाम है वो, या फिर ये उसका वो अमल है, नासिब है ना, वो नसब देता है। और उसका अमल, हाँ, इसको ऐसे इसीलिए बोलते हैं हर्फु मस्दरिन व नासिबिन, हर्फु मस्दरिन व नासिबिन, कि ये मस्दर का माना देता है और लफ्ज में तब्दीली ये पैदा करता है कि जैसे दूसरे जो हरूफ है, मसलन जैसे हम कहते हैं हर्फु नस्बिन व तौकीदिन, मसलन लन, लन के बारे में हम कहते हैं हर्फु नस्बिन व तौकीदिन। ये दो लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये वो हरूफ हैं जो लफ्ज पर डालते हैं और माने पर भी असर डालते हैं। तो अन मस्दरिन, अन हर्फु मस्दरिन व नासिबिन कहा हमने। तो हर्फ मस्दरिन का मतलब है कि ये मस्दर का माना देता है, नासिबिन का मतलब है कि ये फेल मुदारिक को नसब देता है। लन, लन हर्फ तौकीदिन व नस्बिन, तौकीदिन इसलिए कि ये ताकीद का माना देता है, या इसको ऐसे भी कहते हैं हर्फ नस्बिन व तौकीदिन, तौकीद का माना देता है मुस्तकबिल में, और हर्फ नफिन व तौकीदिन भी कहते हैं उसको, हर्फ नासिबिन व नफिन व तौकीदिन, कि ये नफी तौकीद का माना देता है और फिर नसब भी देता है। अखनसीम जी शेख, जी 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 सुनाते हैं। तो जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। वही है। तो अगर हमें कोई पूछे कि ये अन क्या है, तो इस हम दो चीज बतानी है, एक तो ये अन मजदरिया है और दूसरा कि ये नवासिब में से है, ऐसा कहेंगे। हाँ, इसको ऐसे बोले ना, हर्फ मस्दरिन व नस्बिन, खत्म। अच्छा, बात वाज़ेह हुई सबके लिए कि मस्दर मुअव्वल किसे कहते हैं? जी शेख, जी शेख। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुब्तदा और खबर के मुतालिक एक और अहम बात, क्योंकि हम लोग मुब्तदा और खबर के अहकाम पढ़ रहे हैं। मुब्तदा और खबर से मुतालिक एक अहम बात यह है कि मुब्तदा हमेशा, यानी अमूमन हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, अक्सर मुब्तदा मारिफा होता है, ठीक, और खबर नकिरा होती है। ये हमने बचपन से ही पढ़ा, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बचपन में हमने हमेशा पढ़ा है, हमेशा मुब्तदा हमेशा मारिफा। हाँ, बचपन में हमने पढ़ा कि हमेशा मुब्तदा मारिफा होता है ना, मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है ना। ये जी बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था, सही। अब आइए मैं आपको बताऊं कि बाद मर्तबा, चलें उसकी मिसालें बहुत सारी आपकी किताब में दी गई हैं, जैसे मुहम्मदुन रसूल, चांद खूबसूरत है, इसमें चांद खूबसूरत है, इसमें कहां पर यानी चांद मरफू है, बताएं मुझे। अल-कमरु जमीलुन, नहीं, तो आपको वो बोलना चाहिए ना, वरना आपको ये बोलना चाहिए था चांदुन खूबसूरतुन, तो फिर हम बोल सकते थे कि हाँ चलो चांद भी मरफू है। आपने बोला चांद खूबसूरत है। नहीं, अब आप उर्दू में पूछ रहे थे ना, तो मैंने उर्दू में जवाब दिया। मिसालें अरबी में दें। अच्छा, अल-कमरु जमीलुन, जी अल-कमरु जमीलुन, सही है भी, माशाअल्लाह। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अब मुझे बताएं मुहम्मदुन मारिफा है या नकीरा है? नकीरा, मारिफा। मोहम्मद मारिफा है, मोहम्मद मारिफा है, आलम है, मारिफा है, मारिफा है, पक्की बात है। नसीम ने ना तनवीन को देखकर बोल दिया कि ये नकीरा है। जी जी जी, नहीं मारिफा है, पक्की बात है, नहीं ये पक्की बात है उस्ताद जी, मारिफा है, मारिफा। अब्बासुन अम्मु रसूलिल्लाह, अब्बासुन, अब्बास मारिफा है नकीरा है? मारिफा। अब्बास भी मारिफा है। अच्छा, मारिफा की क्या अलामत है इसके अंदर? इसलिए कि वो एक मुअय्यन शख्स का नाम है, अलम है, यानी इसमें अलमियत है इसके अंदर, ये अलमियत, अलमिया बोलेंगे उसको, अलमियत जी। देखिए ये भी मारिफा है, और वो खास शख्स का नाम ऐसे भी कह सकते हैं जी। हाँ जी, कह सकते हैं इंशाअल्लाह, ये बार बार ऐसे लिखा जाता है। और ये है खबर, फनी मुब्तदा, ये भी मुब्तदा है, ठीक है।
चलें अब दूसरी एक मिसाल दूं मैं आपको, अना मुदर्रिसुन ज़ाहिबुन इलल सूकी इलल मलाबी। इलल मलअबी। तो बताएं इसमें मुब्तदा कौन सा है? मुब्तदा इसमें आना होगा सर जी। अना मुब्तदा, अना मुब्तदा। क्यों आना क्यों मुब्तदा? और मुब्तदा मारिफा होता है, तो ये मुब्तदा की मारिफा की कौन सी अक़साम में से है ये? शेख ज़मीर। ज़माइर सारे मारिफा होते हैं। ये आना माशाअल्लाह, मारिफा इसलिए कि वो ज़मीर है। हाँ जी, इसलिए कि वो ज़मीर है। ठीक है, चलें इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं। जी, हादल मस्जिदु वासिउन। अब बताएं मुब्तदा कहाँ है? हाज़ा। हाँ, हादा। तो ये क्यों मुब्तदा कहेंगे हम इसको? इशारा, ये इसमें इशारा है यहाँ पे, इसमें इशारा है यहाँ पे, इसमें इशारा। और अस्मा इशारा सारे के सारे, अस्मा इशारा सारे के सारे मारिफा होते हैं। चलिए आप में से कोई मुझे बता सकते हैं मारिफा के अक़साम जल्दी से? बस इसके बाद हम रोकते हैं सबक को, ताकि जो लोग नए हैं उनको याद दहानी हो जाए, जो पुराने हैं उनको भी याद आ जाए, बिना देखे, बिना इधर उधर सर्च किए। जी शेख साहब। हाँ शेख गूगल से नहीं पूछना, कुछ लोग फौरन शेख गूगल से पूछने लग जाते हैं। जी जी, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। एक मिनट मैं लिखता हूँ। अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, मौसूल, ज़मीर। जी, और मुदाफ इलल मारिफा, मुदाफ इलल मारिफा, मुनादा। जी जी, मुदाफ इलल मारिफा। जी, क्या कहा? और मुनादा, मुनादा में भी मुनादा, मुनादा में भी मुनादा, मुनादा मक़सूदा, मुनादा मक़सूदा। नाम, बारकल्लाह फीक या उम हारून। मुनादा मक़सूद और मुअर्रफ बिल्लाम, जो अलिफ लाम लगा के मारिफा बनाते हैं। जी, मुअर्रफ बिल अलिफ वल लाम। ओके, बिल अलिफ वल लाम। ये नहीं लिख पा रहा हूं मैं, यहाँ समझ जाए वहां पर लाम है। चले माशाअल्लाह, ये 7 अक़साम बिल्कुल सही कहा उम अब्दुल्लाह ने, और जिन्होंने भी उम अब्दुल्लाह की मदद की, सब बहुत काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोगों ने माशाअल्लाह अच्छे से याद रखा है। ये वो अक़साम हैं जिनको हम कहते हैं अक़सामुल मारिफा। बारकल्लाहु फीकुम। हम लोग यहीं पर रुकते हैं।